Welcome to my channel Slay Minds. Today we are covering the topic of lines and angles for class 9 from NCERT book. In the meantime, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you. Today we'll learn about lines and angles. Now, in this, let us understand what are the terms used in this chapter. The first thing is collinear points. When three or more points are in a single line, so these are called collinear points. Okay, if they are all in the same line, they are called collinear point. If they are not in the same line, so definitely 3 points होंगे तो same line में नहीं होंगे, so they will make a triangle, so they are non-collinear points. Okay, now you understand the word angle. Okay, angle, this is an angle, this is an angle, this is an angle. Now vertex, this is A is a vertex, B is a vertex, this is called vertex, C is a vertex. Okay, now arms, A कोई angle है तो A, B, C, this is an angle. In this angle, AB is an arm and BC is an arm. Okay, now complementary angles. If I say this is a 90-degree angle, A, B, C. Now if I say this angle is A and this angle is B, this angle B is complementary to A. So that means इन दोनों का sum जो होगा 90 डिग्री होगा and A is complementary to B. So एक दूसरे का complement है, so that means इन दोनों का sum जो है 90 डिग्री है. Okay. So if I say supplementary angles, let's understand supplementary angles. So this is X, this is Y and this is Z. Okay, this angle is A and this angle is B. Now यहाँ पे A is supplementary of B and B is supplementary of A. So that means A plus B, which means A plus B is equal to 180 degree. Okay, supplementary. This is complementary. Okay. Now, what are adjacent angles? If I say ये है, आप इसी में समझ सकते हो. अगर आपका ये है, so A is adjacent to B और A is adjacent to this B और यहाँ पे X ले लें और ये Y ले लें. So X is adjacent to Y. So X is adjacent to Y and Y is adjacent to linear pair angles. If a straight line होती है, so ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. दे आर मेकिंग द लीनियर पेयर. ओके, सो द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री. दिस इज स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड दीज आर मेकिंग द लीनियर पेयर बिकॉज लाइन बन रही है, सो दैट मीन्स दे आर मेकिंग द लीनियर पेयर. दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. Adjacent angles. Now vertically opposite angle, these are very important. आप लोग अगर दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, दे शुड बी नॉट बी एनी zigzag और टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस. सो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं. इफ इस एंगल की A डिग्री है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी A डिग्री एंड दिस इज B, सो ये भी B होगा. ओके, बेसिकली क्या होगा? ये A है तो ये 180 माइनस A हो जाएगा. ओके, B विल बी 180 माइनस A. ओके, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है. When this angle is A, so this will be 180 minus A. जब ये 180 minus A होगा तो ये एंगल भी 180 minus A होगा. So why? This is vertically opposite angles. Okay, A is equal to A and B is equal to B. Okay, जब दो लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं, आप इनको कितना भी दूर ले जाओ, कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर दो, extended at infinity, they will not meet. So these are called parallel lines. These are called parallel lines. Okay, or you can say parallel lines जो intersect करती हैं. So they are called non-parallel lines or intersecting lines. These are called intersecting lines. Intersecting lines or non-parallel lines. Okay. So ये चीज है. ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये एक्सरसाइज आप बहुत इजीली आराम से सेल थ्रू कर जाओगे. ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस फिगर
line AB and CD intersect each other. Intersect each other means ये दोनों ऐसे कट कर रही हैं, ऐसे कट कर रही हैं, एकदम दिमाग में आना चाहिए. So that means these two angles are equal. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ओके, सो आप खुद ही सोच लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा. सिंपल सा एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए. जैसे ही कोई बोलते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, सो दैट मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, इन दोनों का सम क्या है? 70 डिग्री. एंगल AOC प्लस BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. इसका और ये y ले लें. x plus y is 70, so that means this plus this, ये x है, ये plus y है, is equal to 70 है. And you know that x plus y plus z is equal to 180. स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना. सो z कितना का होगा? ये 70 है इन दोनों का सम, so it will be 110. 180 minus x plus y is 70, so plus z is equal to 180. So z is equal to 180 minus 70 gives you 110. So angle BOD आपका क्या है? 40 है. ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 है तो ये 30 हो गया, है ना. और ये 110 प्लस 30 तो ये पूरा कितना हो गया? 140. अब आप देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. फाइंड एंगल BOE उसने पूछा है, सो दैट मींस दिस इज 30. फाइंड रिफ्लेक्ट COE. ओके, रिफ्लेक्स COE आपका कितना है? 110. अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? सी देखिए, अगर आपका ये एंगल, मैं बोलती हूँ ये एंगल अगर 30 डिग्री है सपोजिंग, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल होता है. ये आप पूरा सर्कल जो होता है, पूरे सर्कल में से जो एंगल होता है उसको सबट्रैक्ट कर दोगे. अगर मैं पूछती हूँ ये वाले एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो पूरे एंगल 360 में से 30 माइनस कर दोगे, आपको एंगल मिल जाएगा. सिमिलरली उसने COE का रिफ्लेक्स पूछा है, तो उसमें से आप 360 में से 110 माइनस कर दोगे, सो दैट गिव्स यू 250. ओके, सो रिफ्लेक्स COE. अब हमें लिखना कैसे है क्वेश्चन. सबसे पहले क्या है, इफ AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, नाउ अच्छा, अब क्या है, आपको ये प्लस ये आप लिखोगे. देयरफॉर नाउ एंगल AOC प्लस COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है 180 डिग्री? स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अच्छा, ये बोल रहा है ये 70 है, ये दोनों 70 है, सो AOE प्लस BOE इज 70. सो 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री. सो एंगल COE इज 110 हो गया. अच्छा, एंगल BOD, नाउ ही इज सेइंग एंगल BOD. नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, सो एंगल BOD 40 है, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, ये क्या गिवन है, ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, एंगल AOC इज 40 डिग्री. ठीक, अगर ये 40 है, अब इस वाली इक्वेशन में रख दो आप एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. AOC कितना है? 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री. फाइन. अच्छा, ये AOC प्लस BOE ये गिवन है. ओके, और 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 हो गया. नाउ दिस इज इक्वल टू दिस. अब इनका क्वेश्चन क्या था? रिफ्लेक्ट COE. अब आपको रिफ्लेक्ट COE बताना है. व्हाट इज रिफ्लेक्ट COE? रिफ्लेक्ट एंगल COE. हमने यहाँ COE निकाला हुआ है. ठीक है, COE हमें पता है
तो COE का रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 माइनस COE, एंगल COE. So that gives you 360 minus 110 degree. 110 degree is equal to 250 degree. Okay. So this angle is आपका एक ये आंसर हो गया, DOE वाला आंसर हो गया, ये दो आंसर हो गए आपके. Now question number 2. In this line, in this question, XY and MN are two lines which are intersecting each other. ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे. फाइन. इफ एंगल POY, दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, सो दैट मींस A प्लस B भी 90 होगा. आप फटाफट जैसे ही क्वेश्चन में कोई भी चीज दी होती है आप खुद ही सॉल्व कर लिया करो कि ये 90 है तो दैट मींस ये भी 90 है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा. सो दैट मींस A प्लस B इज इक्वल टू 90. ओके, नाउ इट इज सेइंग A इज टू B का रेशियो क्या है? 2:3. A is to B का रेशियो क्या है? 2:3. देन फाइंड C. ये वाला एंगल C आपको बताना है. ठीक है. अच्छा, C आपका कैसे निकलेगा? जब आपका ये A निकल आएगा. ठीक है, A निकलेगा तो 90 प्लस A, बिकॉज ये एंगल B है तो ये भी B है. ठीक है, या तो आप 180 माइनस B कर दो तब आपका C आ जाएगा. ठीक है, ये पूरा एंगल 180 है. A और B की जब वैल्यू निकलेगी तभी आपका एंगल C निकलेगा. अच्छा, A और B की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों का सम 90 है. अब आपका क्वेश्चन क्या करते हैं? सो लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ टू एंगल्स A and B is X. ठीक है, सो द रेशियो ऑफ टू एंगल्स क्या है? 2:3. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, बिकॉज हमने ये बिकॉज इसमें POY एंगल POY इज इक्वल टू 90 है, 90 डिग्री. ओके, so 2x plus 3x is equal to 90, so that means 5x is equal to 90. So that means x is equal to 90 upon 5. That gives you 18. Okay, so 18 क्या है? x की वैल्यू है. So 2x है, so 2x वाला एंगल कितना हुआ? 2 into 18, that gives you 36 डिग्री. और 3x वाला एंगल कितना हुआ? 3 into 18, that gives you 54. Okay, so ये वाला एंगल आपका कितना हुआ? 36. और ये कितना हुआ? 54. अगर ये 54 है so ये भी 54 हुआ. तो ये वाला एंगल क्या हुआ? 180 माइनस 54. ओके, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं. सो एंगल B इज इक्वल टू 54 डिग्री. सो एंगल YON, therefore angle YON is equal to 54 degree. Therefore angle C will be equal to 180 minus 54. इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहा है. एंगल YON एंड एंगल XON, एंगल YON and angle XON makes linear pair. Okay, so angle C will be equal to 126. Now in question 3, this is question 3. In this question is saying PQR angle is equal to PRQ. ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, so then prove that PQS, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज PRT के इक्वल. ठीक है, सो एंगल PQR is equal to angle PRQ. Okay, this is given. Okay, in triangle PQR. In triangle PQR is equal to PRQ. Therefore, we can write 180
प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, अब आप क्या करोगे, पी क्यू आर को उधर ले जाओ और पी आर क्यू को इधर ले आओ। सो माइनस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर। ओके, अब 180 माइनस पी आर क्यू क्या होगा, 180 माइनस कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर रहे हैं तो ये वाला एंगल होगा ना। सो 180 माइनस पी आर क्यू विल गिव यू ये वाला एंगल। ओके, सो अगर ये वाला एंगल x ले लेते हैं और ये वाला एंगल y ले लेते हैं, सो दिस गिव्स यू पी आर क्यू गिव्स यू x। ओके, और सिमिलरली अगर पी क्यू आर में से 180 में से पी क्यू आर माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, 180 माइनस पी आर क्यू क्या है, पी आर टी है, दैट इज एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर इज व्हाट, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। ओके, तो ये प्रूव्ड। इजी है, अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका है, इसमें से आप 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लो, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लो और फिर आपका ये आ जाएगा। ये सबसे एक अच्छा वो है कि बाय एडिंग 180, बाय एडिंग 180 बोथ साइड्स, ठीक है ना, बाय एडिंग 180 बोथ साइड्स। ओके, सो आपको ये आ गया और फिर उसके बाद आपने ये कर लिया, आपने इसको इधर ले गए, पी आर क्यू को इधर ले आए और पी क्यू आर को उधर ले गए। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, then show that AB is a straight line, AOB is a straight line. This is okay. Now we know that the full circle makes, so that is x plus y plus w plus z is equal to 360 degree. That is complete angle. Complete angle. Okay. So this is, so now it is saying from equation 1 we can say that, so it is x plus y and w plus z is also x plus y. So we can write, instead of w plus z we can write x plus y. So that means x plus y is equal to 360. Now here we can write x plus y is equal to w plus z. Okay. So यहाँ पे क्या हो गया, 2x plus 2y is equal to 360. Now 2 bracket x plus y is equal to 360. So that means x plus y is equal to 360 upon 2. That gives you 180. 180 means it's a straight line. X plus y is a when x plus y is equal to 180 degree, then AOB is a straight line. Straight line. Question number 5 says, now question number 5 का ये डायग्राम है, इसमें आपको प्रूफ करना है एंगल ROS. ROS कौन सा एंगल है, ये वाला. ROS is equal to half of angle QS plus angle, sorry, minus angle POS. Okay, ROS is equal to half of this angle minus POS. ठीक है. So इसको हम पहले 2 को इधर ले आते हैं, फिर हम वो चीज प्रूव कर लेंगे इजीली. Twice of angle ROS is equal to angle QOS minus angle POS. अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो ये इजीली हम वहां तक चले जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी. सो लेट अस सी एंगल ROS इज व्हाट. सी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक. ये वाला एंगल परपेंडिकुलर ना, तो ये 90 डिग्री है. सो दैट मींस दिस प्लस दिस इज आल्सो 90 डिग्री. सो दैट मींस ROS प्लस POS इज आल्सो 90 डिग्री. ओके, एंगल ROS plus angle POS is equal to 90 degree. So therefore angle ROS is equal to 90 minus angle POS. Okay. अच्छा, ये angle ROS है. अब ये twice है, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक साइड तो इक्वल आ जाएगी. So multiplying
twice ROS is equal to 180 minus twice of angle POS. Okay, multiplying 1 by 2. ओके, अच्छा ये हो गया 2 ROS. ओके ना, फिर से हम लिख लेते हैं 2 ROS. अब 180 एंगल मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मीन्स 90 प्लस ROS प्लस SOP. ओके, POS ये वाला एंगल. ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल गिव्स यू 180. सो दैट इज QOR एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS. ठीक है, ये इतना हो गया 180. 180 किसको डिनोट कर रहा है? इन तीनों को. ठीक है, फाइन. इन तीनों को ये कर रहा है -2 ऑफ POS. ठीक, अच्छा अब ये POS है और ये भी POS है. ये -2 POS है, ये +1 POS है. तो क्या एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS. ठीक, अब QOR प्लस ROS क्या होता है? QOR प्लस ROS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके पूरा ये एंगल बन रहा है. दैट इज QOS. ओके, QOR प्लस ROS क्या बन रहा है? QOS. ठीक है, इन दोनों से मिलके क्या बनाया हमने? ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS. ओके, ये वाली यही चीज आ गई. अब आप ये देखो, ये वाली चीज ये यही आ गई. ठीक है, फिर आप क्या करोगे? एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. This question is done now. Question number 6. It is given that XYZ is equal to 64. Angle XYZ is equal to 64. Okay. So let us make an angle. ये ले लिया XYZ. XYZ is equal to 64 degree. Okay. This angle is 64. अच्छा, फिर क्या बोल रही है? XY is produced to a point P. ठीक है, आपने ये इसको बढ़ा लिया पॉइंट P तक. This is point P. This is X. This is Z. Okay, ये Y है. Fine. Now draw a figure from the given information. If ray YQ bisects, ray YQ किसको bisect कर रही है? ZYP को. ZYP. Okay. इसको बाइसेक्ट कर रही है YQ. ओके, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. फाइंड XYQ. अब हमारे पास ये वाला एंगल है एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये हमने पीछे एक्सटेंड कर लिया है. हमने ऐसे नहीं किया कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ एक्सटेंड करी, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया. इट मीन्स ये पूरा एंगल 180 होगा. ये एंगल भी 180 है और ये वाला एंगल भी 180 है. ठीक है, अगर ये एंगल 64 है तो बाकी ये पूरा एंगल पता लग जाएगा. सो दैट मीन्स XYZ प्लस ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छा, XYZ आपको पता है 64 है प्लस ZYP इज इक्वल टू 180. सो एंगल, this is also angle. So angle ZYP is equal to 180 minus 64. That gives you 116. So ZYP is equal to 116. अच्छा, ये पूरा एंगल 116 है. तो अब आपका ये एंगल कितना होगा? ये एंगल जस्ट हाफ होगा बिकॉज
ये बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल इज 116, तो ये जस्ट बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. सो दैट मीन्स एंगल ZYQ प्लस इज इक्वल टू एंगल QYP is equal to 116 का half. Okay, that gives you 58 degree. So that means this angle is also 58. This angle is also 58. Okay. XYQ, XYQ. उसको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला. So that means angle XYQ is equal to angle XYZ plus angle ZYQ. ओके, अब दोनों की वैल्यूज डाल देते हैं. एंगल XYQ इज इक्वल टू XY कितना है 64 डिग्री है, प्लस ZYQ क्या है 58 है. सो 8 प्लस 4 12, दिस गिव्स यू 122 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो गया 122 डिग्री. ओके, नाउ उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंड रिफ्लेक्स QYP. QYP कितने हैं? सी, अगर कोई एंगल, अगर ये 58 डिग्री है, ठीक है, QYP इज QYP इज 58 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होगा ये वाला एंगल. ठीक है, सो दिस गिव्स यू, सो रिफ्लेक्स QYP is equal to 360 minus angle QYP. So that will give you 360 minus 58. That gives you 302 degree. Okay, this is your answer. Hope your concepts are clear now and you liked my video as well. So please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.